السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم فیروز شاہ فرام کوالٹی کوچنگ اکیڈمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا رزلٹ آپ کی امیدوں کے مطابق رکھے، اور ابھی جو ایٹا ٹیسٹ آپ نے دیا۔ سیکنڈ، آج میں ایٹا ٹیسٹ 2022 کے لاجیکل پورشن کی ڈسکشن کر رہا ہوں اپنے پچھلے ریکارڈ کے مطابق، QCA کے پلیٹ فارم کے ریکارڈ کے مطابق۔ سب سے پہلے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو میں نے لاجیکل ریزننگ کے ڈسکشنز کے دوران کئی بار بتایا تھا کہ لاجیکل ریزننگ میں جو ڈسکرپٹیو فارم کے کویسچنز آتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پیراگراف کے اندر انفارمیشنز کو اپنے لیے اسکیچ فارم میں لکھیں، تو پھر کویسچن ریڈ کرو گے تو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ڈائریکٹ اسکیچ سے آنسر سلیکٹ کرو گے۔ یعنی فار ایگزامپل کویسچن نمبر 195، 196 اور 197 کے بارے میں نے دیکھو اسکیچ جو پیراگراف میں تھا اس کا بنایا ہے۔ اس پیراگراف ان 3 کویسچنز کے لیے جو اسکیچ ہے وہ غور سے دیکھیں تو اس میں انفارمیشن ہے کہ ہمارے ملک میں جو ویسٹ آف واٹر ریسورسز ہیں اس کے 2 بڑے ریزنز ہیں، لیک آف ٹیکنالوجی اینڈ فنڈز وغیرہ، یعنی فنڈز اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہمارے واٹر ریسورسز خراب ہو رہے ہیں۔ یہ پیراگراف میں کلیئر کٹ لکھا ہے، تو دیکھو میں نے ویسٹ آف واٹر ریسورسز کے ریزن، لیک آف ٹیکنالوجی اینڈ فنڈز، اور دوسرا ریزن فلڈ، یعنی فلڈ بھی اس کو ضائع کرتا ہے، ایک ریزن ہے ہمارے واٹر ریسورسز کو ضائع کرتا ہے فلڈ، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اور یوز آف واٹر ریسورسز، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں پیراگراف میں کہا کہ بلڈنگ آف ڈیمز، ڈیم بنانا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا کہ آپ پانی ضائع نہ کریں، اگر آپ کا 1 لیٹر واٹر سے کم ہوتا ہے تو 2 لیٹر نہ گرائیں زمین پر، یا اگر کھیت کو پانی اتنا دینا ہے تو اس سے زیادہ نہ دیں، یا ادھر پانی نہ گرائیں، ویسٹ آف واٹر نہ کریں۔ اینی ہاؤ پیراگراف میں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو مین باتیں تھیں میں نے ود ان 2 منٹس اس کو ریڈ کیا اور اپنے لیے اسکیچ بنایا، جس سے میرے تینوں کویسچن اتنے آسان ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اور ایسا میں نے کئی بار سنڈے ٹیسٹ کی ڈسکشنز میں اور لیکچرز میں، کلاسز میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکرپٹیو فارمیٹ آف لاجیکل ریزننگ سے پہلے اسکیچ بنایا کریں، تو جتنے بھی کویسچنز کے لیے وہ ہوتا ہے وہ آپ کے ایسے سالو ہوں گے، جیسے کہ آپ ان کو دیکھیں۔ انفارمیشن آف دا پیراگراف از دیٹ ویسٹ آف واٹر ریسورسز کا ریزن فلڈ، یہ اس کے ویسٹ کا ریزن ہے، ضائع ہونے کا، اور دوسرا لیک آف ٹیکنالوجی اینڈ فنڈز، کیپٹل وغیرہ یہ سب۔ اور یوز آف واٹر ریسورسز یعنی اس کو سٹور کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ڈیم بنانا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، صرف پیراگراف میں یہی انفارمیشن ہے۔ اب دیکھنا کویسچنز، اب میں ریڈ کروں گا اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ والا ٹھیک ہے، یہ والا۔ ڈیمز essential step for the conservation of water resources، تو صاف لکھا ہے کہ building of dams یہ یوز آف واٹر ریسورس یا کنزرویشن آف واٹر ریسورسز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس کے آگے آپ لکھو گے ڈیفینیٹلی ٹرو، ڈیفینیٹلی ٹرو۔ میرے خیال میں اس میں آپشن اے بالکل صحیح ہے۔ دیکھو میرا 1 سیکنڈ نہیں لگا، صرف یہ اسکیچ بنایا، اب سوچ نہیں رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو کئی بار اس پلیٹ فارم سے بتا چکا ہوں کہ ڈسکرپٹیو فارمیٹس کو ایسے سالو کریں۔ occurrence of floods aid to the water resources، سینٹینس کو غور سے دیکھیں، یعنی اگر سیلاب آتے ہیں تو وہ واٹر ریسورسز میں ایڈ مطلب اس میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تو نہیں جناب۔ پیراگراف میں صاف لکھا ہے کہ فلڈ از اے ریزن آف ویسٹ آف واٹر ریسورسز، یہ واٹر ریسورسز کو تباہ کرتا ہے، اس میں ایڈیشن نہیں کرتا، اس میں اضافہ نہیں کرتا، تو یہ بات بالکل آپ کے پیراگراف کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ فلڈ جو ہے وہ واٹر ریسورسز میں اضافہ نہیں کرتا، اس کو اور بھی تباہ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جناب آنسر ہوگا ڈیفینیٹلی رانگ یا فالس، ڈیفینیٹلی رانگ یا ڈیفینیٹلی فالس، یہ آپشن بالکل ٹھیک ہوگا۔ ڈیفینیٹلی رانگ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ floods is a big reason, is the main reason of waste of water resources, then how can you say that flood can aid to the water resources؟ یہ غلط ہے، بالکل absolutely wrong ہے اور absolutely not ہے۔ Country does not have enough funds to develop water resources۔ دیکھیں واٹر ریسورسز میں ضائع ہونا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لیک آف ٹیکنالوجی، کیپٹل اینڈ فنڈز ہیں، سو دیر فار یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی رائٹ،
डेफिनेटली ट्रू। तो इसमें ये ठीक है। देखो मैंने कितने विद इन 1 सेकेंड आपको समझाए। अगर आपने ये स्केच बनाया, और ऐसा मैं कई बार आपको समझा चुका था। एनी हम इसके अलावा इससे पहले ये भी एक पॉइंट है, इससे पहले एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आया है लॉजिक का। पहले तो आप जानते हैं कि सिलेबस में 6 क्वेश्चन थे लॉजिक के, और उसके साथ 7 है। सो वो हकीकत सच कहूं तो वो लॉजिक का क्वेश्चन ही नहीं है। आप रीड करें, दैट इज अ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि टफ इंग्लिश में क्वेश्चंस जो पाए गए हैं, जैसा कि पेपर में अक्सर आता है कि पैराग्राफ पढ़ें और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। दैट इज नॉट अ लॉजिक, दैट इज नॉट अ ट्रिक। उसमें सिर्फ पैराग्राफ में छुपे हुए इंफॉर्मेशन आपने उसके आंसर देने हैं। तो वो लैंग्वेज बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होना चाहिए। लॉजिक आपको बताता हूं, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे ये कैसे सॉल्व करे। तो पर्सनल अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता तो मैं अपना IQ लेवल इस्तेमाल करता और मैं कहता कि इतना बड़ा पैराग्राफ सिर्फ एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए, तो इसको तो रीड करने में भी 5 मिनट लगते हैं। तो जैसे ही मैं देखता, आप यकीन करें, मैं इसको रीड भी ना करता। और यही सबसे बड़ा लॉजिक है। मैं इसमें अपनी पसंद का कोई ऑप्शन सेट कर लेता और प्रोबेबिलिटी की तरफ जाता कि चांस है कि इंशाल्लाह ये 1 नंबर मुझे मिल जाएगा, बजाय इसके कितने बड़े पैराग्राफ को हम सिर्फ 1 नंबर के लिए रीड करें और 5-6 मिनट रीड करने में दें, फिर दोबारा रीड करने, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में 3-4 मिनट लगाएं, और फिर 1 नंबर पे सोचें, और वो भी अगर गेस सही नहीं किया तो गलत हो जाए। तो ये सिरे से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना था। और यही लॉजिक है कि आपने सही डिसीजन लेना है। मैं आपकी तरह होता, आपकी जगह होता, तो मैं जैसे ये क्वेश्चन देख लेता, मैं ऑप्शन बी को सर्कल कर लेता या सी को सर्कल कर लेता, लेकिन इसको रीड ना करता। और आपको भी यही मशवरा देता हूँ। दूसरी बात, वो क्वेश्चन लॉजिक एंड ट्रिक बेस्ड है ही नहीं, वो आपका वोकैबुलरी चेक करने का एक क्वेश्चन है, आपके मेंटल या ब्रेन की एफिशिएंसी चेक करने का क्वेश्चन नहीं है। एनी हाउ मैंने जो उस पर कमेंट करना था कर दिया, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखें सेकेंड क्वेश्चन। आप इस 195, 196, 197 कितनी इजीली हो गए, आपको जो तरीका सिखाया उससे। 198 देखें, मैं इसके आपको क्लू दे रहा हूं, हिंट्स दे रहा हूं। मैंने कई बार संडे टेस्ट में रिपीट किया हमने QCA के प्लेटफॉर्म पे कि देखो एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो हमने दिया था कि इफ ओसामा स्टैंड्स फॉर दिस 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 देन इब्राहिम या फहद या फेरोज विल स्टैंड फॉर व्हाट। तो ये कोडिंग का क्वेश्चन था। कोडिंग के बेशुमार क्वेश्चंस हमने टेस्ट में शामिल किए। इसके अलावा भी ग्रैंड टेस्ट में भी हमने एक क्वेश्चन दिया था कोडिंग का। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि इफ बॉय स्टैंड्स फॉर दिस then what will be the code of girl, ये भी दिया था। और इसमें 2 अल्फाबेट्स के बाद से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। मतलब कोडिंग के क्वेश्चंस लेक्चर्स में भी मैंने जो समझाए थे, और कोडिंग के क्वेश्चन हमने कई टेस्ट में शामिल किए थे 3-4 एंगल से। अब देखो इसमें आसान सा लॉजिक आपको बताता हूं। देखें ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इजी ट्रिक आपको ये कई बार समझा चुका हूं। और ये इसका कोड है। तो कोड लिखने का देखें, फर्स्ट की जगह फर्स्ट और सिक्स्थ की जगह देखो सिक्स्थ, यानी फर्स्ट और सिक्स्थ नहीं छेड़े गए। तो ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कोड में यहाँ फर्स्ट और सिक्स्थ अपनी जगह पे है, तो मैं भी फर्स्ट अपनी जगह पे और सिक्स्थ अपनी जगह पे उतारूंगा। यहाँ कोड में भी फर्स्ट और सिक्स्थ नहीं छेड़ा, तो मैं भी इधर फर्स्ट और सिक्स्थ नहीं छेड़ूंगा। फिर देखें यहाँ पर मुझे ओ मिला, लेकिन ओ फोर्थ है, तो यहाँ इट मीन कि मुझे फोर्थ लिखना होगा, एंड फोर्थ इज आई, तो मैं लिख रहा हूं आई। देखो यहाँ ओ है और ओ क्या है, फोर्थ। तो इधर कोड में ये फर्स्ट है, इधर फर्स्ट तो इधर फर्स्ट, इधर फोर्थ तो इधर भी फोर्थ। अब टी कौन सा है, इधर देखिए 1 2 3 फिफ्थ, टी फिफ्थ है, तो मुझे भी इधर फिफ्थ लिखना होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ। इट मीन के मुझे सी लिखना पड़ेगा। अब देखिए इधर टी फिफ्थ था, ई क्या है, अब देखिए ये ई, तो ये ई जो था ये 2 है, तो मैं 2 इधर लिख रहा हूं। इट मीन कि मुझे भी यहाँ 2 लिखना होगा, एंड यहाँ 2n है तो मुझे n लिखना होगा। अब देखिए m है, लेकिन m यहाँ 3 है, तो मैं समझ गया कि मुझे भी यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, और 1 2 3 3 i है। तो इट मीन कि अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड होगा पिकनिक, एंड द करेक्ट आंसर विल बी पिकनिक। इससे इजी मेथड एंड शॉर्ट टाइम सोल्यूशन आई थिंक मुमकिन ही नहीं है। आप जितना भी सोचें, आप बेशक सोचें, तो आप उलझते रहोगे, ये इससे। द बेस्ट वे टू सॉल्व इज कि इसको नंबरिंग दे दें, और कोड में वो नंबरिंग का तरतीब दे के उसी तरतीब से इधर भी कोड बनाए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। पिकनिक इज द करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन का मैं अब यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म से बताता हूँ QCA के लॉजिकल पोर्शन को देखें, QCA बुक के लॉजिकल पोर्शन के MCQs देखें। यहाँ इस तरह के MCQs मैंने 2-3 डाले हैं। एक बड़ा ज्यादा वायरल हुआ संडे टेस्ट में भी, मैंने कई बार रिपीट किया हमने। तो एक है कि बुक्स है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और उनसे हमने एक टावर बनाया है, और पोजीशन ऑफ द बुक और नाम, ऑर्डर, इवन हम डिफरेंस बिटवीन द बुक्स एंड टॉप बुक एंड मिडल बुक, ये सारे क्वेश्चंस QCA के बुक में भी मौजूद हैं और हमने टेस्ट में भी रिपीट किए। सिर्फ यहाँ पर बुक्स के बजाय बैग्स हैं। आइडिया ये है, कंडीशन क्या है कि 5 बैग्स हैं, 1 2 3 4 5। ये मैंने आपके लिए बनाया है गिवन कंडीशन से। आपके टेस्ट में ये था कि आपने बैग्स इस तरह रखने हैं कि A जो है वो B के ऊपर है, तो देखो A B के ऊपर है, C above D, तो देखो C D के ऊपर है, और C below E, तो देखो C E के नीचे आया है, एंड D above A, और देखो D A के ऊपर है। तो जो कुछ आपको गिवन है मैंने उससे टावर बनाया। ये टावर क्यों ठीक है? क्योंकि ये इन सारे कंडीशंस के बिल्कुल मुताबिक है। आपको स्टेटमेंट में गिवन कंडीशंस और इस टावर में बिल्कुल 100% बातें सेम मिलती हैं। तो अब बताओ कि मिडल में कौन है? मैंने इसमें बार बार आपको बताया, डिस्कशंस में बताया, संडे टेस्ट में बताया कि जो इंफॉर्मेशन है उसको ड्रा करें। एक बार ड्रा हो जाए आंसर यू सेलेक्ट होता है। तो देखो मिडल में कौन है? मिडल में है जनाब डी, और आपका आंसर ठीक होगा। देखो ये 200। यहाँ पर एक बात याद आ गई, अक्सर स्टूडेंट्स कहते थे कि सर कॉज एंड इफेक्ट आते हैं, पिछले साल कॉज एंड इफेक्ट आते थे। मैं उनको एक ही रिस्पॉन्स देता था, और मेरा एक रिस्पॉन्स ये था डियर स्टूडेंट्स कि क्या 1997 से 2020 तक ईटा सब एक तरह आया? ऐसे भी टेस्ट आते हैं जो बहुत इजी, ऐसे भी आते हैं जो बहुत मुश्किल, ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट, ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे भी टेस्ट देखे फिजिक्स के पोर्शन में जिसमें वेक्टर से 6 क्वेश्चंस आए थे, और ऐसे भी टेस्ट देखे जिसमें वेक्टर से एक भी नहीं आया था। तो स्टार्ट से, अजल से यहाँ तक मेरा एक ही कमेंट है टेस्ट के बारे में कि इट इज अ क्वाइट रैंडम टाइप टेस्ट, और कोई कभी नहीं कह सकता कि टेस्ट इस तरह आएगा और इस तरह आएगा। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द रैंडम टाइप ऑफ टेस्ट। और मैंने स्टूडेंट से कहा था कि पिछले साल कॉज एंड इफेक्ट के आए थे, तो ये गारंटी नहीं है कि हर बार यही आएंगे। तो देखो इस बार कॉज एंड इफेक्ट का कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, सिवाय इसके कि आप थोड़ा इसको कह सकते हो, लेकिन सच कहूं तो ये भी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, छुपे हुए कंडीशन है जिससे आपने रिजल्ट हासिल करना है क्वेश्चन। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, ये लॉजिकल डिडक्शन में आता है, ये कॉज एंड इफेक्ट में बहुत कम आता है। एनीहाउ, और सीरीज भी देखो आपके सामने है, कोडिंग भी आपके सामने है, लॉजिकल प्रॉब्लम वो भी क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो देखो आपने देखा कि कॉज एंड इफेक्ट 100% टच नहीं हुआ। अब मैं नहीं कह रहा कि अगली बार फिर ये हो सकता है अगले टेस्ट में सारे कॉज एंड इफेक्ट के आ जाएं, बट आपके सिलेबस में जो है वो उसके लिए आपने सबको प्रिपेयर करना होगा। आप सिर्फ एक पर फोकस नहीं कर सकते। द लास्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत से हिंट्स हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने में, बट ये भी मैंने आपसे कई बार कहा कि हमेशा इजी पाथ सेलेक्ट करें और अपना मकसद पूरा करें। फॉरगेट अबाउट ऑल द सोल्यूशन और सॉल्विंग फैक्टर्स। तो इन्होंने कहा कि इनमें रॉन्ग टर्म क्या है? तो देखो 1 और 5 में +4, 5 और 15 में +4 नहीं, यहाँ एक टर्म मिसिंग है, में से ये एक टर्म मिसिंग हो गया है। यहाँ कुछ है 9, देखिए इस टर्म में है 9 और समथिंग, फिर है 15 और समथिंग। तो गलत टर्म सिर्फ डिसाइड कर रहा हूं। तो 5 + 4 9, और देखो 9 + 4 से 13 बनता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 15 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ 15 है, और इन्होंने 15 लिखा है, लेकिन 13 होना चाहिए। इट मीन ये 15 वाला टर्म जो है ये रॉन्ग है, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी, द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी 15LS। 15LS ये वाला ऑप्शन गलत है, और इससे पहले एक टर्म है, वो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है 9IT। 9IT, तो एक बार फिर देखें, 1 + 4 तो 5, 5 + 4 तो 9। अब 9 + 4 होना चाहिए था 13, लिखा है 15। अगर ये 13 हो तो 13 + 4 देखो 17, 15, 14, 15, 16, 17। तो अगर 13 हो तो पूरा सीरीज ठीक आता है, लेकिन 15 है तो इट मीन यहाँ 13 नहीं, तो ये 15 यहाँ क्या है? गलत। और ये भी कहते हैं कि रॉन्ग टर्म क्या है? तो रॉन्ग टर्म है 15LS।
بہت ایزی پورشن آیا تھا لاجیکل ریزننگ کا. دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کی مدد کرے. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.